So let's start from the next unit according to the book, that is SQL expressions. I believe you people are getting my voice. Do write whether you're getting my voice or not. Om Joshi, do you see what I record? Actually, I'm not posting it from last 2 days because all the day when I'm making videos and taking classes, वो सारा data खत्म हो जाता है. तो today I'll try to save my data और तब मैं उसको share करूँगा. Classes में note करता ही हूँ, record करता हूँ, don't worry. ठीक है? चलिए, let's start. So the basic query where we write column number names, then table, then where, and let's see what is next. Matching expressions is not relevant to us. यहाँ पे ये थोड़ा सा relevant है, इसको पढ़ते हैं. This is select count star as records from customers. Okay. So count star means we are counting all the records of the customer file, that how many records it has. Okay. And we are displaying that record as records. Now what is the difference between as records and if I say simple count, select count from customers? So what is the difference that we'll try to understand. If I say select count star from customers, so in place of records here, count star will come. Okay. Now what am I doing? I'm providing an alias that in spite of putting count star, the expression, just write an alias which is written after as. So as is used to change column headings, right? So select count star as records from customers. So at the top records, you will be seeing that in spite of count star, records will be displayed, right? I believe I have shown you this earlier also. Now you can write down in a notebook this thing, current timestamp. Okay, current timestamp. So if we simply write current timestamp, so today's date and time will come. Okay, today's date and time will come. YYMMDD format. Okay, this will be Y, M and D format. And this is a function basically to get the system date. The concept is almost same. Format थोड़ा सा आप देख सकते हैं. यहाँ माइक्रो सेकेंड्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स नहीं आ रहे हैं, बट दिस इज टू गेट सिस्टम डेट. इस समय हमारी मशीन की क्या डेट है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो करंट टाइम स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं या गेट डेट यूज़ कर सकते हैं. दिस इज टू डिस्प्ले द डेट विच इज स्टोर्ड विद दिस डेटाबेस. So I'm scrolling some of the part that people have already done, or I'm skipping which is not relevant to us. Yes, you can note down this one. Drop table and table name. Drop table command is used to delete a table. Drop means delete a table. If you want to remove a table physically from the database, you can go with this command. बच्चों टाइम से ज्वाइन करो. वंशिका. Okay, this insert we have already done. These are the examples of insert into customers. Here field name have been written wherein the values are to be put, then values, and we provide values, right? I have told you that if the sequence
of values you are providing is similar to the sequence of the database of the table, not the database, then you need not to put these field names. दोबारा सुनिए, अगर आपका डेटा उसी सीक्वेंस में प्रोवाइड किया जा रहा है जिस सीक्वेंस में आपको डेटा, जब आपने टेबल बनाया था जो फील्ड्स दिए थे, अगर वही सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप पार्शियल डेटा प्रोवाइड करते हैं तब आपको ये लिखना कंपलसरी हो जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे हमने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर, नाउ इफ आई से ID, salary, then I'll say values 1, 2000. Since we are not providing all the columns value, that's why we have to define for what columns we are providing values and what values will be stored in those particular columns as a new record. So यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये वैल्यूज किस किस में जाएंगी, जो आप 1 और 2000 प्रोवाइड कर रहे हैं ID में और सैलरी में। लेकिन अगर आपके पास टेबल में यही फील्ड्स हैं और आप इन्हीं के अगेंस्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज़, और आप सीधा सीधा वैल्यूज़ डाल रहे हैं। सो दीज वैल्यूज़ आर एक्चुअली 5 वैल्यूज़ एंड इट हैज़ 5 कॉलम्स, सो नो नीड टू पुट। I do not know why these people are giving again and again the same thing. Where clause? Where clause we have learnt. There's nothing special in where clause. Same where clause. चलिए थोड़ा सा ये कुछ नया है, इसको पढ़ते हैं। वी नो दैट इंसर्ट कमांड is used to put values to a table. Okay, now for example, if we have inserted data into a particular column and that data needs to be changed, it needs to be updated. मान लीजिए हमने कोई नाम गलत डाल दिया या कोई डेटा हमने गलत डाल दिया, अब हमें डेटा को अपडेट करना है। तो अगर हमें किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है तो हम कमांड यूज़ करते हैं अपडेट। इसका सिंटेक्स क्या है? अपडेट टेबल का नाम, यहाँ पर टेबल कीवर्ड नहीं आता है, जैसे क्रिएट टेबल में टेबल आता है, अपडेट में टेबल का नाम नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे। अपडेट टेबल, उसके बाद सेट, सेट का मतलब आपको क्या चेंजेस करने हैं ये आप डिफाइन करेंगे। सेट कॉलम 1, जो भी कॉलम है आपका उसकी वैल्यू, इसके बाद कॉमा लगा करके दूसरी वैल्यू। इस तरह से आप कोई भी कितने भी कॉलम्स लगा कॉलम के नाम लिख करके उनकी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप वेयर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको ये जो चेंजेस करने हैं ये किस में चेंजेस करने हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे सब लोगों के एज में 2 साल बढ़ाने हैं, सब लोगों की एज में, सब लोगों की एज में बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा? सिलेक्ट, नॉट सिलेक्ट, चेंज करना है ना, अपडेट। ओके, सो द कमांड विल बी अपडेट, टेबल का नाम है मान लीजिए कस्टमर्स, सेट एज इज इक्वल टू एज प्लस 2, और मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा क्योंकि मुझे सबकी एज को 2 साल बढ़ाना है, राइट। अब मान लीजिए इसमें से मुझे केवल कोमल की एज को 2 साल कम करना हो, या मान लीजिए कि केवल कोमल की एज को 2 साल बढ़ाना हो, सबको नहीं बढ़ाना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? अपडेट कस्टमर्स सेट एज इज इक्वल टू एज प्लस 2 वेयर नेम इज इक्वल टू कोमल। इस क्वेरी से केवल कोमल की एज बढ़ेगी 2 साल। ऑलराइट, मान लीजिए मुझे जो भी सैलरी है
ये सैलरी 10% बढ़ानी है, तो क्या क्वेरी बनेगी? सबकी बढ़ानी है, मान लीजिए सिलेक्ट, फिर सिलेक्ट किया जाता है मुझे बार बार, अपडेट कस्टमर्स सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 1.1, विल इट बी ओके? एंड सिंस सबकी बढ़ानी है तो सैलरी इंटू 1.1, तो इससे 10% सब लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। ये फॉर्मूला सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलराइट, तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपडेट कस्टमर्स सेट एड्रेस इज इक्वल टू पुणे वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। तो आईडी 6 किसकी है? कोमल की। जहाँ पर क्या लिखा है? एमपी लिखा हुआ है। तो जब आप लिखेंगे सेट एड्रेस इक्वल टू पुणे, तो एमपी की जगह इसका डेटा जो है वो पुणे में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अपडेट कस्टमर्स सेट एड्रेस इज इक्वल टू पुणे सैलरी इक्वल टू 10,000। अब ये डिजास्टर कमांड है, तो इसमें सबके एड्रेसेस पुणे हो गए और सबकी सैलरी 1000 हो गई। आई बिलीव अपडेट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट होता है रिमूव करना किसी डेटा को। रिमूव, अगर हमें रिमूव करना है कोई डेटा हमारी टेबल से, कोई रिकॉर्ड रिमूव करना है, तो उसके लिए कमांड होती है बच्चों डिलीट। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद आप कंडीशन दे सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए डिलीट करना है खिलान का रिकॉर्ड, सो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम खिलान, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इक्वल टू खिलान। ओके, तो इससे क्या होगा? खिलान का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 6, तो कोमल का डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोमल का डेटा आपको दिखाई नहीं देगा। ऑलराइट, और अगर आप केवल डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स दे देते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि आप कोई भी डेटा स्पेसिफाई, कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। लेकिन स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा बेटा, टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल ड्रॉप टेबल से डिलीट होती है, सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे। तो टेबल नहीं डिलीट होगी, विल रिमेन सेम, विल रिमेन, एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो, स्ट्रक्चर का मतलब जो फील्ड्स हैं वो भी बच जाएंगे आपके, ओनली डेटा विल बी डिलीटेड। ठीक है, सो टेबल विल रिमेन अवेलेबल। ठीक है, ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर जो है वो भी अवेलेबल रहेगा। सो दिस वाज डिलीट कमांड। लाइक मैंने आप लोगों को बता दिया था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दीज आर कॉल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ओके, इसमें दो हैं, एक तो परसेंटेज साइन है और दूसरा अंडरस्कोर है। द परसेंट साइन रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। मतलब ये हुआ कि अगर आप परसेंट लगाते हैं तो परसेंट का मतलब है अगर उसके आगे काफ़ी कैरेक्टर्स लिखे हैं या एक कैरेक्टर लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है, तब भी वो उसको रिप्लेस करता है। तो मल्टी कैरेक्टर रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग परसेंट को यूज़ करते हैं, जबकि जो अंडरस्कोर होता है ये सिंगल कैरेक्टर को यूज़ करता है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशंस में यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, स्टार होना चाहिए यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम लाइक। अब यहाँ इन्होंने कुछ डेटा लिखा है, उसके बाद परसेंट लगाया है। इस एग्जाम्पल में आगे पीछे दोनों तरफ परसेंटेज लगाया हुआ है, यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया है, यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने, देखते हैं फिजिकली एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ लिखा है वेयर सैलरी लाइक 200 और उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाया हुआ है बच्चों।
क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया है 200 के बाद, तो जिनकी भी सैलरी 200, 2000, 20,000, 2 lakhs कुछ भी होगी, मतलब शुरू के जो 3 नंबर्स हैं वो 200 होने चाहिए, इसके बाद कुछ भी हो वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब यहाँ लिखा है वेयर सैलरी लाइक 200। मेरे ख्याल से आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सैलरी को ऐसे क्यों लिखा है, तो सैलरी को इन्होंने वेयर कैर लिया होगा बच्चों, ठीक है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ये। तो वेयर सैलरी लाइक परसेंट 200%, तो कहीं पे भी अगर बीच में 200 होगा, कहीं पर भी बीच में, अगर किसी की 4200 है तो भी आ जाएगी, 200 है तो भी आ जाएगी, 2200 है तब भी आ जाएगी, और 2000 है तब भी आ जाएगी। मतलब ये 3 सीक्वेंस एक साथ अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है वेयर सैलरी लाइक अंडरस्कोर। अब यहाँ लिखा है फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव 00 इन द सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। सेकेंड और थर्ड पोजीशन में जहां पर 00 होगा वही सैलरी आएगी, मतलब 100, 200 से लेकर के 900 तक की सैलरी इसमें दिखाई देगी। आगे लिखा है वेयर सैलरी लाइक 2_%_%। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, ये करेक्ट है, एंड आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन द लेंथ, और उसके पास 3 कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद 3 कैरेक्टर्स। तो एक ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऑलराइट, हालांकि परसेंट लगाने की मेरे ख्याल से यहाँ ज़रूरत नहीं थी, 2 और 2 स्लैशेस दिए जा सकते थे। चलो इसको चेक करेंगे हम लोग, वाई दे आर राइटिंग दिस वे। इसके बाद है सिलेक्ट सैलरी लाइक 2, आई बिलीव ये क्लियर होगा आपको। यहाँ पे भी दूसरी डिजिट 2 होनी चाहिए और उसके बाद आखिरी डिजिट जो है वो 3 होनी चाहिए, बीच में कुछ भी हो सकता है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एनी वैल्यू इन 5 डिजिट नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड विथ 3, ये भी ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा, इसके बारे में कोई भी क्वेरी है तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके रोहन, तुम बहुत लेट आए हो बेटा, स्पीक ऑन। रोहन, वाई सो लेट बेटा? रोहन, कैन यू लिसन टू मी? अच्छा, कोई बात नहीं, कल तो थोड़ा और लेट उठ सकता है, कल संडे है, और मंडे को टाइम से उठ जाना, ठीक है? चलो ओके। So these are few examples of wildcards. Let's see, they have given some examples with actual table or not. Let's see this. Select star from customers where salary like 2. This is the same thing that we were discussing. 2000 वाले records आ गए हमारे पास. And that's it. Okay. इसके बाद जो next clause हम पढ़ रहे हैं बच्चों, that is top clause. आज मैं आप लोगों के लिए इसकी एक्सरसाइज क्रिएट करूंगा, उस एक्सरसाइज में आप लोग इसमें काम करेंगे, ठीक है? और आंसर कैसे देंगे आप? चलो आई विल गिव इट इन द फॉर्मेट ऑफ अ टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम टॉप क्लाउज यूज कर रहे हैं। टॉप क्लाउज जो है टॉप एंड रिकॉर्ड्स निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल है सिलेक्ट टॉप, यहाँ पर एक नंबर दे दिया हमने, या फिर परसेंट, दोनों दे सकते हैं। फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर दी। अब हमने लिखा सिलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम कस्टमर्स, टॉप 3 स्टार्स फ्रॉम कस्टमर्स, राइट? तो टॉप 3 में क्या होगा, पहले 3 रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, ऑलराइट? व्हेन आई से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3, तो लिमिट 3 का मतलब भी यही होता है बच्चों। लिमिट का मतलब होता है कि हम कितने रिकॉर्ड्स को एक साथ दिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने लिया लिमिट 3, तो पहले 3 रिकॉर्ड्स फिर से आपके पास आ जाएंगे। 2 तरीके हुए, या तो हम लिखें सिलेक्ट टॉप 3 स्टार्स फ्रॉम कस्टमर, पहले 3 रिकॉर्ड्स, या फिर हम लिखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3,
इससे भी हमारे पास पहले 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। आगे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर रो नम इज अ रिजर्व वर्ड दैट रिटर्न्स रो नंबर लेस देन इक्वल टू 3। रो नंबर जो है वो अपने आप इसका क्रिएटेड होता है, जितने रिकॉर्ड आप डालते हैं उसके हिसाब से रो नंबर अपने आप वैल्यू उठाता है इसमें। सो इट्स अ की वर्ड ऑफ एसक्यूएल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर रो नम इज लेस देन इक्वल टू 3। तो 3 तक के रिकॉर्ड्स फिर आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं इसमें। ऑर्डर बाई मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ बच्चों। हमारी एसक्यूएल में मान के चलें आप 70-80% कमांड्स हो गई हैं, 70% से ज़्यादा करीब करीब। ठीक है, ग्रुप बाय भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिलेक्ट नेम सम ऑफ सैलरी फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय नेम। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ सैलरी आ गया ग्रुप बाय नेम। अब इसमें कहीं डुप्लीकेट है? रमेश, खिलान, कौशिक, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट नहीं है तो 7 के 7 रिकॉर्ड ऐसे ही आ जाएंगे इसमें, 3 और 4 7, कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें देखते हैं सिलेक्ट नेम सम ऑफ सैलरी फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय नेम। यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं शायद। यस, कौशिक हो गया है, रमेश, हार्दिक, कोमल और मफी ये लोग वैसे ही हैं। तो इन दोनों का सम होगा बच्चों, और कौशिक का सम होगा। सो हार्दिक को एज इट इज दिखा दिया गया। कौशिक का आ गया 2000 + 6 500, तो 85 आ गया। कोमल एज इट इज, मफी एज इट इज, रमेश का सम हो गया है 2000 + 1। एक चीज़ और ध्यान रखें आप, जब भी ग्रुप बाय होता है उस समय डेटा अरेंज फॉर्मेट में आता है। जैसे यहाँ पे रमेश, कौशिक ये रैंडम ऑर्डर है, जबकि यहाँ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ रहा है। देखो ये उसका रीज़न ये होता है बच्चों, जब भी ग्रुपिंग की जाएगी तो हमें एक जैसे नामों को एक साथ रखना पड़ेगा, तो उसके लिए एल्गोरिथम लगाना पड़ता है हमको। तो एल्गोरिथम लगाते समय हम डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट में फाइंड करना ईजी होता है, और अगर अनसॉर्टेड लिस्ट है तो उसको फाइंड करना प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए जब भी ग्रुप बाय का रिजल्ट आएगा आप ये ध्यान रखेंगे कि आप डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली एच आ रहा है तो सबसे पहले एच लिखेंगे, फिर उसके बाद के आ रहा है, फिर एम और फिर आर, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो सैलरी के बेस पे ऑर्डर किया गया है। डिस्टिंक्ट देखते हैं कहाँ पे लगा है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय सैलरी। तो डिस्टिंक्ट सैलरीज आ जाएंगी। जिन लोगों की सैलरीज सेम होंगी उन लोगों की सैलरीज को डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। ओके। सॉर्टिंग भी आप लोगों को बता दिया गया था, ऑर्डर बाय करना। तो मोस्टली कमांड्स हमारी हो गई हैं, बस इसका एक टेस्ट बच रहा है आपका, एक प्रैक्टिस टेस्ट बच रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक शीट दूंगा, उसमें आप प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये जो ऑर्डर बाय का सीक्वेंस दिया हुआ है इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। कॉन्स्टेंट्स आप लोगों को बता दिए गए थे। ये सब रिपीट हो रहा है बिलीव इस किताब में, ये सेम आइडिया। ओके, मंडे को लेट्स सी विल हैव अ टेस्ट ऑन मंडे। यहाँ तक है 17/4/2021। ज्वाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ट्यूसडे वेंसडे, क्योंकि मंडे को मैं आपका टेस्ट लूँगा। ठीक है, मंडे टेस्ट लेंगे या फिर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज देंगे, टेस्ट नहीं लेंगे अभी, टेस्ट थोड़ा बाद में लेंगे। तो एक प्रैक्टिस वो देंगे हम आपको कंटेंट, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे मंडे को। उसके बाद जब हमारे प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह खत्म हो जाएंगे तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो ये हमारा है एसक्यूएल ज्वाइन। ठीक है, चलिए आप लोगों की